income and other criteria. Hello students, I am Priyanka and here I am your teacher for economics. So today we are going to study about income and other criteria of chapter 1 development in economics class 10th. So now we will start with the first we are going to check it out what we studied earlier. So we studied earlier was in part 1 that what is average income, how we calculate it and what is its disadvantage and what are the other things needed for development. So we are here with income and other criteria. Now let's see what is in there. Now see, for once again just think what are the other criterias that can be helpful फॉर द डेवलपमेंट. हमारे पास और कौन से क्राइटेरिया हो सकते हैं जो हमारे लिए डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे सिवाय इनकम के, अपार्ट फ्रॉम इनकम. सो आपने चलो अब इस चीज़ को थोड़ा साइड में रखते हैं. हम वापस इंडिविजुअल एस्पिरेशंस और गोल्स पे तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमने ये देखा था कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इनकम को ही बेटर ऑप्शन नहीं समझते अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. उनके पास उनके लिए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा इन माइंड. ओके, सो ये सब चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं जस्ट लाइक इनकम. ऐसे ही सेम वे में अगर हम नेशन की बात करें तो हम इनकम के अलावा और भी चीज़ें देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए. अब ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं? मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ, आप सोचें कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं हमारे लिए. और okay, so now I think you must have thought what are the important things other than income. Yes, so for an example let's take the things are better health, better education facilities for everyone and better environment to live in, better quality of life. So let's figure in this table we have got here some important things, table 1.4, that are also needed for life apart from income. So now here in table we can see Punjab, Kerala and Bihar. We are given with 3 states here. So what can you see here? First thing, infant mortality rate in Punjab is 49. What is meant by infant mortality rate? Let's first go for that. Infant mortality rate is the indices, as you can see the definition around here. Okay, so this is the particular definition, let me read it out. Indices the number of children that die before the age of 1 year as a proportion, in 1 year as a proportion of 1000 live children born in that particular year. So what does it mean is इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है कि कितने बच्चे 1 साल की एज होने से पहले मर जाते हैं एज कंपेयर टू उन 1000 बच्चों में से जो जिंदा रह जाते हैं, जो बच जाते हैं, जो लाइव रहते हैं. सो दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. एंड लिटरेसी रेट क्या हुआ? मेजर ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप, यानी कि 7 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उनमें से कितने लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं. उन बच्चों की बात होती है इसमें कि उनमें से कितने % बच्चे पढ़ सकते हैं. तो उन्हें कहते हैं हम लिटरेसी रेट 7 years एंड अबव. दैट इज़ वेरी नेसेसरी, इट कम्स इन एग्जाम्स, दीज डेफिनेशंस ऑल्सो, सो यू शुड मार्क इट. नेट अटेंडेंस रेशियो, it is a total number of children of age group 6 to 10 attending school as a percent of total number of children in the same age group. ये क्या है? कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं 6 to 10 की एज के as a percent of total number of children in the same group, यानी कि children attending the school, upon total number of children in the
same age group. Understood? I hope is it clear? Children attending school upon number of children in the total age group. तो ये होता है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो. सो अब आप हम कंपेयर करके देखते हैं इन 3 स्टेट्स के अंदर, पंजाब, केरला एंड बिहार के अंदर हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पंजाब में है. तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चे पंजाब में 1 ईयर के होने से पहले ही, एट उनकी एज 1 ईयर हो जाए उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है. एंड लिटरेसी रेट क्या होता है, 70% है पंजाब का, यानी वहाँ पे से 70% लोग पढ़े लिखे हैं. नेट अटेंडेंस रेशियो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के 81 ओनली. एंड यू कैन सी इन केरला infant mortality rate is only 11. That is a very good thing. Only small number of children, although it is sad, but as compared to other states it is good. Small numbers of children are there, and literacy rate is very high, 91, and attendance ratio is also very high, 91. And similarly in Bihar, just like Punjab, it is a bad situation. Everything is in a bad scenario. So now what you see is the income is not the only factor which creates the comparison of different countries. It is also the other criteria that should be included to calculate how developed the country is. So if you are going to see the per capita income of Punjab, Kerala and Bihar in 1.1 table, so you can see here Punjab has per capita income of 26,000, whereas Kerala has only 22,000 and Bihar has 5,700. So you can see Punjab has much more capita income, but then too its situation in health and other things like education and health is very bad, and I would rather say it's not good at all. And similarly in Bihar, so even though Kerala has less capita income, less per capita income, but उनके यहाँ पे बाकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए वो अच्छी हैं. सो आप इस चीज़ से क्या समझते हैं? इस चीज़ से हम ये समझते हैं कि इनकम के अलावा और बहुत ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जो नेसेसरी हैं कंपैरिजन के लिए. ओके, सो लेट्स वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड द टेबल. So now you see how painful it must be for these parents, even though after 56 years of independence, when we are full of metros, towns, high rise buildings and shopping malls, सब कुछ है हमारे पास, but फिर भी ऐसे बच्चे भी हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, एजुकेशन सिस्टम जो लो एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे अच्छी नहीं है सिचुएशन. अब आप देखें, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि पैसे तो पंजाब में अच्छे खासे हैं, इनकम तो पंजाब के पीपल के पास बहुत अच्छी है एवरेज पर्सन से, बट फिर भी वो केरला से बाकी चीज़ों में जो क्रूशियल एरियाज है उनसे लैग बिहाइंड करता है. सो इसका जो मेन ये हमारे पास अंडर लिखा हुआ है, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. सो मनी से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं. ये सारी मेन बात यही है जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए. सो इनकम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ कंप्लीट एडुकेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़. इससे हमें ये पता पड़ता है कि सिर्फ इनकम से ही हम पता नहीं लगा सकते. आप इनकम से पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते हो, राइट? आप उससे बिना इनकम से आप अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन क्या होती हैं? एडल्ट्रेटेड का मीन्स होता है मिलावट हुई होना, यानी कोई चीज़ें मिलावट हो. जैसे आप कोई दाल लेके आ रहे हो तो उसमें नकली मिलावट है, पत्थर वगैरह पड़े हैं, सो दैट इज एडल्ट्रेटेड. सो अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन का मतलब हुआ आप सही मेडिसिन नहीं खरीद सकते ना इनकम से, अनलेस आप दूसरी कम्युनिटी में चले जाएं जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल हो. अगर अवेलेबल ही नहीं है वो चीज़, आप कैसे खरीदोगे? सो मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस जब तक आपकी कम्युनिटी में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है. और अच्छे हॉस्पिटल कैसे आएंगे, ये सब चीज़ें कैसे बनेंगी?
सो बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसका सबसे बेस्ट वे और चीपेस्ट वे आप कह सकते हैं, बेस्ट वे एंड ऑल्सो द चीपेस्ट वे, इसकी क्या है कि हम इस चीज़ों को कलेक्टिवली प्रोवाइड कराएं। बेस्ट वे इज व्हाट, वी शुड प्रोवाइड दीज थिंग्स कलेक्टिवली, सबको साथ में। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपकी अगर आप अलग अलग लोकेलिटी में जहाँ आप रह रहे हो, अगर हर एक घर अपनी अलग अलग सिक्योरिटी रखे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। रेदर देन आप पूरी कॉलोनी की बाहर गेट पे एक परफेक्ट सिक्योरिटी टीम लगा दें, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करके उस सिक्योरिटी टीम को हायर कर सकते हैं, रेदर देन आप हर घर की अपनी अपनी सिक्योरिटी हो। तो दैट इज बेस्ट एंड चीपेस्ट वे कि आप कलेक्टिवली काम करें, कि एक सिक्योरिटी हो और सब सिक्योर रहेंगे, सब सेफ रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। सोचो अगर आपके बिना कोई स्कूल में ना जाए, सिर्फ आप जाना चाहते हो स्कूल, सिर्फ आप पढ़ना चाहते हो, तो ऐसे नहीं होगा ना। अगर अनलेस आपके पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर रहे आपको कुछ प्राइवेट स्कूल वगैरह भेजने के लिए, तो बेस्ट वे क्या है और चीपेस्ट वे क्या है कि सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पीपल ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट को स्कूल ओपन करने चाहिए और अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सके और उनका फ्यूचर अच्छा हो, राइट। फॉर द बेटर फ्यूचर दे शुड स्टडी। इन मैनी एरियाज अभी तक चिल्ड्रंस, पर्टिकुलरली गर्ल्स, आप देखें तो वहाँ पे सेकेंडरी लेवल स्कूलिंग नहीं होती है उनको प्रोवाइड, क्योंकि वहाँ पे एडुकेट यानी प्रॉपर फैसिलिटीज़ ही नहीं होती हैं, जैसे कि कुछ रूरल एरियाज। मैं सारे रूरल एरियाज़ की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ कुछ रूरल एरियाज़ की बात कर रही हूँ। अब देखिए केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉपर प्रोविजंस हैं, एडुकेट यानी प्रॉपर प्रोविजंस मीन्स फैसिलिटीज़ हैं जो कि बेसिक हेल्थ और बेसिक एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं उनके पास, इसी वजह से उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है। सिमिलरली कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे पास एक न्यू वर्ड आया है, ये न्यू टर्म का मीनिंग क्या है? दिस मीन्स कि आपके जो राशन शॉप्स होती है ना, जहाँ से आप खाना वगैरह, मतलब जहाँ से आप राशन लेते हैं, तो राशन शॉप्स, किराने की दुकानें जो होती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। वो अगर ढंग से फंक्शन नहीं करेंगी तो ऐसी जगह जो होती हैं जहाँ पे ढंग से फंक्शन नहीं हो रही है, उनकी फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ी आ रही है किराने के सामानों में, तो वहाँ के लोग उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई यानी सही करने चले जाते हैं। सो दैट इज मच वे बेटर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, इन इंक्रीजिंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल। लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, उनका स्टेटस भी लाइकली बेटर हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस। एंड नाउ okay, so now you may study this table carefully. Literacy rate for rural population is male is 52%, female is 90%. A survey was done to conduct this. Okay, so now this is, you have to study. Literacy rate for children in age group is 10 to 14 years, this male and female. It is not real survey of Uttar Pradesh, it's just an estimation. Percentage of rural children aged 10 to 18 attending school, 64% male and 31% female. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि रूरल पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट क्या होती है। ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो है और ये आपको भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इस बारे में कि एज कंपेयर टू फीमेल, वहाँ रूरल पीपल ये प्रेफर करते हैं कि मेल एजुकेशन ले, और उसमें भी बहुत कम ये लोग बिलीव करते हैं कि एजुकेशन भी सही में इम्पॉर्टेंट है। लिटरेसी रेट के अब यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स आई होप भर सकते हैं, और इससे हमें ये समझने को मिल रहा है कि अभी भी कितना डेवलपमेंट की नीड है इंडिया के रूरल एरियाज़ में। ऑल्दो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है राइट नाउ, ये थोड़े पुराने डेटाज हैं, बट देयरफॉर इन सम एरियाज नाउ, even now we have these problems and we have the need to rectify them. अब देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास, इस पे क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स का आपके लिए, BMI। ओके, सो नाउ व्हाट इज BMI, कुछ लोगों को पता भी होगा।
ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस. एक वे है फाइंड आउट करने का कि एडल्ट्स अंडर नरिश्ड है कि नहीं. ये चेकआउट करने का न्यूट्रिशन साइंटिस्ट ने एक वे निकाला है. न्यूट्रिशन साइंटिस्ट कौन होते हैं? जो ऐसे साइंटिस्ट जो न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं कि हमारी बॉडी कितनी हेल्दी है, कितने न्यूट्रिशन उसको पूरे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, दैट थिंग. सो हम क्या वे है इसका? बॉडी मास इंडेक्स, BMI. ये कैलकुलेट करना इजी होता है. आपको बस करना क्या है, वेट लेना है पर्सन का केजी में. weight you have to take the person's weight in kg and divide it by the square of its height. सिंपल. वेट लेना है और उसको स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट से डिवाइड करना है, यानी kg डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट. अगर BMI 18.5 से कम है तो मतलब वो पर्सन अंडर नरिश्ड है, और 25 से ज़्यादा है तो यानी वो ओवरवेट है. ये ग्रोइंग चिल्ड्रन पे अप्लाई नहीं होता. लेट मी मेक इट क्लियर वंस अगेन. वेट, ओके. सो BMI इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो kg अपॉन मीटर स्क्वायर. आपका वेट कितना है और बाय आपकी हाइट मीटर्स में उसका स्क्वायर. दिस इज इजी आई होप. एंड अगर आपका वेट 18.5 से कम है तो आप अंडर नरिश्ड हो. और अगर आपका वेट 25 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हो. सो नाउ यू कैन सी दिस बेटर आई होप. See. Okay. So let's move on to the next topic. So now I hope this is clear. BMI basically होता कुछ नहीं है, बस आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट चेक होता है कि क्या आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट सही है कि नहीं. यही चेक करने के लिए हम BMI यूज करते हैं. ओके. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. एंड दिस इज वेरी नेसेसरी, आई वुड टेल यू. BMI आपके एग्जाम में आ जाती है 1 मार्क्स की डेफिनेशन, मे बी ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है फॉर्मूले और उसके साथ मीनिंग वगैरह के साथ. सो अगर आप देखें, कंपेयर करें BMI को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ऑफिस वर्कर्स एंड बिजनेस पर्सन से, तो आपको ये पता पड़ेगा कि BMI जो होगा वो कंस्ट्रक्शन वर्कर और डोमेस्टिक सर्वेंट्स का कम होगा एज कम्पेयर टू बिजनेस पीपल्स के. ये कॉमन सी बात है क्योंकि उनके अंदर नरिशमेंट लेवल थोड़ा कम होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और उनमें, मोस्टली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में. मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, सो डोंट टेक इट दैट वे. Okay, so now human development report. This is also one important question that comes in exams. Human development report क्या है? जब ये रियलाइज किया गया कि इनकम के अलावा बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत बार. सो जब ये रियलाइज किया गया तो हमें पता पड़ा कि ये सिर्फ अकेला मेजर नहीं हो सकता लेवल ऑफ डेवलपमेंट चेक करने का. हमने दूसरे क्राइटेरिया के बारे में सोचने की स्टार्टिंग करी. तो हमें पता पड़ा कि इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है. आप टेक्नोलॉजी ले सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो कि डेवलपमेंट आप किससे मेजर करा जाए, लोगों में कितनी बहुत इमोशनल फैक्टर्स, एवरीथिंग यू कैन टेक. सो इसको थोड़ी लिस्ट को स्मॉल रखने के लिए हमने सिर्फ 2 फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिए, जो कि क्या थे? हेल्थ एंड एजुकेशन. राइट. सो दीज वर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंपैरिजन के लिए, जैसे कि हमने कैलरॉल पंजाब में किए थे. सो हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर से हमें वाइडली सब जगह यूज होते हैं और ये इजी मेजर रहा.
सो जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी ने पब्लिश करी, यूएनडीपी इज द फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. व्हाट इज द फुल फॉर्म? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो इन्होंने जब पब्लिश करी ये रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एजुकेशन लेवल से बेस्ड होते हुए और पर कैपिटा इनकम और उनकी हेल्थ चेक करते हुए, तो एक इंटरेस्टिंग डेटा आया. अगर आप इंडिया और इंडियन की नेबरिंग कंट्रीज का डेटा अगर आप चेक करते हैं तो आप ये देखेंगे, सी पर कैपिटा इनकम श्रीलंका की इंडिया से ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ गिवन है, लिटरेसी रेट गिवन है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गिवन है, HDI रैंक इन वर्ल्ड. अब मैं बताती हूँ ये सब क्या है. पर कैपिटा इनकम आपको ऑलरेडी पता है क्या है, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा. क्या होती है ये? एवरेज इनकम होती है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ कंट्री, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय, सॉरी, टोटल इनकम ऑफ द पीपल डिवाइडेड बाय इट्स टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल पॉपुलेशन. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होती है कि एक पर्सन की उसके बर्थ के बाद तक कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी वो कितने साल तक जिएगा. लिटरेसी रेट आप सब जानते हैं, फॉर 15 ईयर्स पॉपुलेशन के लिए 15 प्लस ईयर यानी 15 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनकी लिए लिटरेसी रेट की, उनमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स. Gross enrollment ratio means enrollment ratio for primary school, secondary school and higher education beyond secondary school. क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब है कि प्राइमरी स्कूल में और सेकेंडरी स्कूल में और हायर एजुकेशन जो होती है, यानी सेकेंडरी स्कूल के बाद जो एजुकेशन आती है, यानी उन सारे लेवल्स का 3 लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट रेशियो कि कितने बच्चे एनरोल करते हैं, एनरोल यानी एडमिशन लेते हैं. सो वो रेशो है ये. ना आई होप दिस इज क्लियर. और हमारे पास HDI है. HDI हमारे क्या होती है? HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि HDI रैंक्स इन अबव टेबल आर आउट ऑफ 177 कंट्रीज इन ऑल में से दी गई है. टोटल कंट्रीज 177 ली गई थी इस रिपोर्ट में, उसमें से HDI रैंक दी गई है. रैंक है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक. ओके. सो अब इस टेबल में से आपको क्या पता पड़ा? आप एक बार टेबल अच्छे से रीड करें, पॉज करके वीडियो को. ओके. सो नाउ लेट्स मूव ऑन कि हम इस टेबल से क्या सीखे. सरप्राइजिंगली हमें पता पड़ा कि एक स्मॉल कंट्री जो है इंडिया के पास में, जो कि श्रीलंका है, वो काफ़ी अहेड है इंडिया से एवरी रिस्पेक्ट में. और हमारी जैसी बिग कंट्री भी इतनी कम रैंक रखती है. ऑल्दो ये रैंक अभी इंक्रीज हो गई होगी, बट फिर भी देन टू इंडिया में अभी भी बहुत नीड है डेवलपमेंट की. और नेपाल भी हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है. सो मैनी इम्प्रूवमेंट्स have been suggested in calculating HDI and many new components have been added to the human development report. तो इसके अलावा और भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट्स और चीज़ें ऐड की गई थी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, की गई हैं, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्लियर कर दे कि क्या इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट, जो कि सिटीजन्स ऑफ उनकी एक कंट्री के सिटीजन्स के लिए रियली में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या हो रहा है. उन पीपल इंपॉर्टेंट है, उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उनकी वेलबींग इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अब आप सोचते हैं कुछ और सर्टेन एक्सपेक्ट्स होंगे जो भी कंसिडर करने चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट में. श्योरली आप सोच सकते हैं कि और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जो कि आप कंसिडर करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में. ओके. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. वी हैव गॉट हियर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. अब देखिए, आपके घर में खाना बना. अब सपोज करो कि आपको बहुत भूख लगी. आपने टोटल खाने में से जो होते ना, टोटल सपोज करो आपके घर में टोटल जो खाना बना उसमें से आपने कम से कम हाफ ऑफ द फूड यू एट, जितना पूरे घर के लिए बना था 5 मेंबर्स के लिए. सो अब नाउ व्हाट, आपने तो खा लिया, बाकी बचे कितने लोग? 4 लोग. तो उनके लिए कितना थोड़ा थोड़ा बच गया. तो आपने बहुत गलत काम कर दिया. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी वैसा ही होता है कि हमें सबको साथ लेके चलना है. ऐसा नहीं कि हम सब अपने लिए यूज़ कर ले. डेवलपमेंट तो हम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें हम लेते चले जाते हैं, डेवलपमेंट करके सब खत्म कर देते हैं. ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो डेवलपमेंट की वजह से ख़त्म हो जाएंगी?
वो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं आप बताइए। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मे बी कोल सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल है। कोल आप यूज़ कर लेंगे तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना। इट्स अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, यानी ये बार बार नहीं बन सकता, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं कोल को बनने में। सो अगर आप उसको इतना ओवर यूज़ करके, डेवलपमेंट के नाम पे आप उसको ओवर यूज़ करेंगे कि हम फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, इसके बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसके थ्रू बहुत यूज़ हो रहा है इसका, तो आप इसको एक टाइम पे ख़त्म कर देंगे पेट्रोलियम को, कोल को। सो क्या होगा, आने वाली जनरेशन्स कैसे काम करेंगी? सो दैट इज़ रॉन्ग। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही कहता है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए। वी हैव, देखो जैसे हमने कोट देखा है, ये कोट बहुत अच्छा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हम ये नहीं कहते कि हमें हमारे पापा से मिला है, हमारे पूर्वजों से हमें ये वर्ल्ड मिल गया है, नो, हमने ये हमारे आने वाली जनरेशन से बोरो किया है। जो आने वाली जनरेशन है हमें उसके लिए भी चीज़ें रखनी है। आप सब खा के ख़त्म कर देंगे, आप सब यूज़ करके फिनिश कर देंगे, तो आने वाली जनरेशन आपको बहुत बुरा बोलेगी, यू नो, यू विल बी बैड पर्सन इन फ्रंट ऑफ दैम। सो इसीलिए 20th सेंचुरी के हाफ के बाद, यानी आफ्टर 2010, यानी आफ्टर 20th सेंचुरी हाफ के बाद यानी 2050, हाँ 2050 कह सकते हैं, कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि जो लेवल जो है ना डेवलपमेंट का, वो सही नहीं है। जैसे अब अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल से, रीसेंट एविडेंस से हमें पता पड़ा कि ग्राउंड वाटर जो है वो भी सीरियस थ्रेट पे है, कि ओवर यूज़ हो रहा है उसका। 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनका वाटर लेवल डिक्लाइन हो चुका है 4 मीटर से ज़्यादा। आप कहेंगे सिर्फ 4 मीटर तो हुआ है, बट इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ड्यूरिंग पास्ट 20 ईयर्स नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग ग्राउंड वाटर ईयर्स, यानी ओवर यूज़ हो रहा है, यूज़ नहीं हो रहा है, ओवर यूज़। इन अनदर 25 ईयर्स 60% ऑफ कंट्री would be doing the same if the present way of using this will continue. एग्रीकल्चर प्रॉस्पर रीजन जैसे पंजाब, वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेटू, इन जगह ज़्यादा यूज़ होता है, ताकि क्योंकि वहाँ पे अर्बन सेटलमेंट ज़्यादा बन रहे हैं। अब ज़्यादा घर बनेंगे, ज़्यादा पानी चाहिए, सबको पानी तो चाहिए ही ना। पर अगर आप उसका ओवर यूज़ करोगे, और ओवर यूज़ तो चलो ठीक है आप कर रहे हो, पर उसको रिप्लेनिश होने का भी तो टाइम दो। ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश कैसे होता है? यस, बाय रेनफॉल। अगर आप टाइम ही नहीं दे रहे हो, रेनफॉल भी प्रॉपर नहीं होती है आजकल, रोड्स बन जाती हैं, तो ग्राउंड वाटर अंदर पेनिट्रेट भी नहीं हो पाता है। और उसके बाद आप देखो कि ग्राउंड वाटर की कितनी प्रॉब्लम है, कि वो केमिकल्स वगैरह सब ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, तो कितना वो केमिकली इफेक्टेड हो जाता है, और वो पीने लायक फिर रहता ही नहीं है। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। सो ग्राउंड वाटर एक रीन्यूएबल सोर्स का एग्जाम्पल था, फिर भी ये चीज़ खत्म हो रही है। तो आप देखो डेवलपमेंट तो ठीक है, बट हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सस्टेनेबल मतलब एक सेम पेस पे चले, यानी धीरे धीरे ऐसे डेवलपमेंट हो कि आने वाले लोगों को भी वो चीज़ें मिले और चीज़ों का ओवर यूज़ नहीं हो। तभी ये टर्म आई सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे पास अर्थ पे चीज़ों का फिक्स्ड स्टॉक है, ऐसा नहीं है कि फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। हमारे पास इन सब चीज़ों का फिक्स स्टॉक है। ओके, सो हमको नए रिसोर्सेज तो डिस्कवर करने ही हैं, ताकि हम पुराने वाले रिसोर्सेज से, उसका ओवर यूज से बचें। पर हमारे इससे चलता रहा, जैसे फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल है, अगर ये नॉन रीनेबल रिसोर्सेज है, हम ऐसा तो रिसोर्स फाइंड कर सकते हैं कि ऑयल के अलावा हम कुछ और ले लें, बट जल्दी अगर नहीं किया गया और इसका सही यूज़ नहीं हुआ, तो सारे नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो यही प्रॉब्लम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि रिगरस डेवलपमेंट, यानी कि बहुत तेज़ी से जो सिर्फ डेवलपमेंट चल रहा है विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंसेस। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ आप ये सोचो कि नहीं, वो तो हम थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो पास वाली कंट्री पोल्यूशन कर रही है, बट ऐसा नहीं है। नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज के बाहर जाता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर यहाँ पे पोल्यूशन होगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में जो कंट्रीज़ हैं उधर नहीं होगा। अगर चाइना पोल्यूशन करता है तो इंडिया में भी एज इट इज़ पोल्यूशन वो फैलेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलेगा, नॉट इन इंडिया ओनली। सबको ही इसका इफेक्ट झेलना पड़ जाएगा। तो हमारा फ्यूचर लिंक्ड है साथ में, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आजकल पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में साथ में सारे साइंटिस्ट मिलके इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं।
तो क्वेश्चन क्या आता है, डेवलपमेंट क्या है, एक तरीके की ऐसी चीज़ है, मतलब ऐसा टर्म है जो हर टाइम पे अलग अलग तरीके से चेंज होता है, और क्या हम हर टाइम पे, एक टाइम ऐसा आता है कि हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या सच्ची में चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे गोल्स क्या हैं। तो इसकी डिबेट जो है डेवलपमेंट की, वो कंटिन्यू रहती है। अब आप कोरोना वायरस को ही देख लीजिए, अब ये क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर चाइना ढंग से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करता, ना कि सब टाइप के फूड रिसोर्सेज को यूज़ करने की बजाय पर्टिकुलरली चेक करके कौन सी फूड वो यूज़ कर रहा है उस पर डिपेंड करके यूज़ करता, सो आज हमें ये टाइम नहीं देखना पड़ता। सो इट इज़ अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं नेशनल बाउंड्रीज को वो तोड़ देता है। That's all for the today's class. Thank you, students. And for the next chapter, please stay tuned. Please stay in contact and press the bell icon so that you get notification for the next class. Subscribe my channel. Please like, subscribe and share it. Thank you.